Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ Dr. Nevin Abraham, back with another episode of What If series. So today's topic is, what if you don't do regular dental checkups or regular dental visits? Well, most of the patients do visit their dentist only if there is a tooth problem. जैसे कि पेन हो या सेंसिटिविटी हो, तब हर एक पेशेंट्स को अपने डेंटिस्ट की याद आता है. Am I right? Well, that's not a right thing to do. Do you know you can save on to a lot of money if you do regular dental visits? Well, I'll explain how. All you need to do is once in 6 months visit और once in 6 months को चेकअप करने की ज़रूरत है बस. तो साल में कितना हुआ? 2 विजिट्स. अब जब कंसल्टेशन फीस की बात है, जहाँ तक मैंने देखा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ मिनिमम 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ and goes up to maximum 1500 to 2000. Well, it sounds a lot, but now this costing of the consultation fees or any particular dental treatments, as I told you earlier in my introductory video, it varies from dentist to dentist and also their expertise. The reason is because some doctors have done intensive hours and months and years of training. So उसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है into their training so that they can give you a better treatment plan and they can help you and guide you better. So जितना ज़्यादा उनकी knowledge है उतनी ज़्यादा उनकी फीस भी लगता है. And also definitely geographical locations, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को पता है डेंटिस्ट्री काफ़ी एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि मटेरियल्स का कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी सारा रिसोर्सेज लगता है टू सेट अप अ प्रैक्टिस which becomes really costly. So now let's take example of a consultation fees which is about 500 rupees. तो साल में सिर्फ 1000 rupees ही होता है. Now when a patient comes for a consultation, dentist evaluates his or her mouth completely in all aspects. First he checks how's the condition of the tooth in generally. मतलब एक पूरा जांच करता है. टूथ की कंडीशन कैसा है, गम्स की कंडीशन कैसा है, दांत में कोई मोबिलिटी है कि नहीं, मतलब दांत अगर कुछ हिलता है या नहीं. एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स, खासकर जो यंग पीडियाट्रिक पेशेंट्स, जो यंग पेशेंट्स है और इवन यंग अडल्ट जैसे कि टीनेजर्स होता है, यंग एज के जो एज ग्रुप है उनके जो टूथ है वो काफ़ी इज़ ऑफ अ गुड एनाटमी, मतलब उनकी जो शेप स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है. सो दे कंटेन डीप पिट्स एंड ग्रूव्स विच आर मोर प्रोन टू कैविटी. सो ऐसे कोई केसेस, अगर ऐसे कोई टूथ फॉर्म या टूथ शेप दिखा तो डेंटिस्ट कैसे क्या करते हैं कि दे एडवाइज सच काइंड ऑफ पेशेंट्स टू डू समथिंग कॉल्ड स्पिट एंड फिशर सीलेंस, मतलब जो ग्रूव्स होती है उनको सील करने के लिए कहता है. And even if there is any presence of खासकर एक्चुअली जो पिट एंड फिशर सीलेंस है यूजली यंग छोटे बच्चे लोग में करता है, बट इवन इन यंग टीनेजर्स दे आर एडवाइज टू डू सो. इवन इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ एनी स्मॉल और बिग कैविटी दैट इज ऑल्सो बीन डिटेक्टेड. अगर स्मॉल कैविटी है तो डेंटिस्ट बताएंगे उसको अर्ली स्टेज में ठीक करा दो. Because if you delay it, it's going to become into a big cavity. Then treatment plan will also change accordingly. Also, the most important thing is if there is any skin changes that happens. Now, skin changes हमारे clinic में काफ़ी सारे patients ऐसे हैं, पिछले 3-4 साल से हम लोग treat कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं चलता है उनके मुंह में ऐसे शार्प टूथ होता है. दैट इज़ अनडिटेक्टेड शार्प टूथ. Now when such things are there, any sharp tooth or any sharp fillings or sharp crowns, ऐसा कुछ foreign substance या फिर एकदम कोई नोकीली चीज़ अगर मुंह में रहेंगे तो this leads to continuous skin को एक abrasion होता है, जिसकी वजह से there will be skin changes and एक white color का patch and etc ऐसा form होता है, which is nothing but एक प्री कैंसरस लीशंस है जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लानस. नॉट ऑल केसेस बट इट डिपेंड्स ऑन द स्किन पैटर्न एंड वो सब एक्चुअली एक कंसल्टेशन में ही इवेल्युएट कर सकता है.
So for that reason, this routine dental checkups is very important, especially to rule out such issues, especially ये जो cancerous lesions है, which is not cancerous, a pre-cancerous lesion which if it is not treated at an early stage can develop into a cancer. सॉरी मैं डराने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं जब पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है दैट दे हैव समथिंग शार्प इन देयर शार्प थिंग्स और शार्प टूथ और फिलिंग्स इन देयर माउथ. Also, there are certain bulgings which are there. गम में थोड़ा सूजन रहता है या फिर गम बॉयल कहता है, गम swellings or a white color balloon like thing on the gums, which is nothing but kind of an infection which comes out or it shows out. So sometimes it becomes symptomatic, मतलब पेशेंट को पेन होता है उसकी वजह से, वो बल्जिंग की वजह से. समटाइम्स इट इज़ असिम्टोमेटिक, मतलब उसको कोई पेन ही नहीं होता है. तो पेन नहीं होगा तो वो इन्फेक्शन कहीं पे गया नहीं है, इट इज़ देयर इन द बोन, इन द टिश्यू. सो द मोर इट स्टेज इन द टिश्यू, द मोर इट इज़ गोइंग टू ईट ऑफ, दोज आर लाइक colony of bacteria inside, so that is going to eat off the bone and it is going to cause more and more damage to the bone, and it leads to a lot of complicated dental procedures and healing भी काफ़ी delay होते रहेगा. Now apart from this, like समझो आपके टूथ पे कोई फिलिंग हुआ रहेगा या फिर रूट कैनाल किया है या क्राउन लगाया है. Now the bacteria doesn't know that the tooth is being filled or there is any टूथ पे कोई फिलिंग किया है या रूट कैनाल हुआ है. बैक्टीरिया को ये नहीं पता रहता है. बैक्टीरिया इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट ऑल दोज living tissues which are there in the mouth, and it is definitely going to cause decay to it. So इसका ये मतलब नहीं समझो अगर दांत पे कोई फिलिंग है तो ऐसा नहीं सोचना कि वो दांत पे कभी कैविटी होगा ही नहीं. डेफिनेटली वो होगा. इवन अगर RCT किया है या उस पर कोई क्राउन लगाया है, डजेंट मीन दैट उस पर दोबारा कैविटी नहीं लग सकता है. 100% देयर कैन बी a decay that can happen onto it if there is no proper maintenance, or if it is if you're not maintaining it properly. So everything can be ruled out at a very initial stage if you come for once in 6 months routine dental checkup. So ऐसी बहुत सारी information आपको consultation visit पे लग सकता है, which you can get it corrected at a very early stage. Now suppose if this 6 months की जो checkup आपने मिस किया हो या फिर आप भूल गए या फिर आपके जो लेजीनेस या फिर निगलेक्ट की वजह से उसको स्किप ऑन हुआ, आप अगर सोचते हो कि मैं तो अभी बिजी हूँ या फिर मैं 6 महीने के बाद आता हूँ या फिर 1 साल के बाद आता हूँ, तो व्हाट हैपन्स इज सर्टेन कंडीशंस जैसा कि मैंने पहले बताया है विच कैन बी करेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज, प्रोग्रेसेस इनटू अ नेक्स्ट स्टेज एंड इट माइट वर्सन द सिचुएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल कैविटी, अगर डॉक्टर ने कहा है कि एक दांतों पे छोटा सा एक कैविटी है जो 6 महीने या फिर 1 साल के बाद वो बड़ा बन जाता है. नाउ स्मॉल कैविटी की कॉस्ट अगर मैं बताया तो अप्रॉक्सीमेटली से अबाउट 1000 रुपीज़ होता है. जब बड़ा हो जाएगा तो डेंटिस्ट को 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करना पड़ेगा टू कंट्रोल द सेंसिटिविटी इश्यूज और टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टूथ स्ट्रक्चर. मतलब जो अंडरलाइंग सेकेंड लेयर है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, द स्टेजेस ऑफ टूथ एनामल, डेंटिन एंड पल्प. तो एनामल में कोई नर्व फाइबर्स होती नहीं है, तो उसमें कोई कैविटी होता है तो यूजुअली पेशेंट्स को कोई सेंसेशन होता ही नहीं है. लेकिन जब सेकेंड लेयर में पहुंचता है तो पेशेंट को बहुत सेंसिटिविटी इश्यूज होता है, एंड वो लेयर पे हम लोग डायरेक्टली एक परमानेंट फिलिंग नहीं कर सकता है. उसमें एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल यूज़ करना पड़ता है टू कंट्रोल द सेंसिटिविटी, एंड फिर उसके ऊपर एक वाइट कलर टूथ कलर्ड मटेरियल यूज़ करना पड़ता है. तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो बड़े कैविटीज़ में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ करना पड़ता है. सो इसकी वजह से क्या होता है कि फिलिंग की जो कॉस्ट है गोज़ अप टू रफली 2 to 3,000. सो अब रही बात कॉस्ट की, ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्मॉलर द कैविटी लेस इज द कॉस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग वुड बी द फिलिंग, बिकॉज साइज जितना छोटी है फिलिंग की उतना टूथ स्ट्रक्चर है टू सपोर्ट द फिलिंग. नाउ बिगर द कैविटी बिगर द कॉस्ट, ये उतना पैसा जेब से निकलेगा, लेकिन इट इज़ लेस लास्टिंग.
The reason is filling would be less supported with the natural tooth, because जितना ज़्यादा कैविटी डिस्ट्रॉय करेगा टूथ सर्फेस को, उतना कम चांसेस है वो फिलिंग को रहने के लिए, उसको फिलिंग को सपोर्ट करने के लिए with the natural tooth. Now, because of this neglect, treatment plan changes and thus dentistry becomes expensive for the patient, and then patient starts bargaining. कहने लगता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा कंसेशन दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो आफ्टर ट्रीटमेंट, समझो ट्रीटमेंट करने के बाद पूछते हैं कि एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है सारे पेशेंट्स की कि क्या ये ट्रीटमेंट जो फिलिंग किया या रूट कैनल किया लाइफ टाइम वारंटी है, क्या है कि नहीं? एम आई राइट? Anyways, let me tell you, my viewers, that we doctors are human beings and not God to give warranty or guarantees. Yes, we believe in science because हमारे जो dentistry है, it's completely based on science and we follow them. But exact science can't be copied because it's practically impossible. We don't have a guarantee of ourselves whether we would live till tomorrow. Am I right? कि हम लोग कल क्या होगा, कल तक अगर ज़िंदा रहेगा कि नहीं, वो हम लोग बता भी नहीं सकता. सो इवन द फोन थ्रू विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो डजंट हैव अ वारंटी वंस इट इज सोल्ड आउट फ्रॉम द शॉप, है कि नहीं? हाँ, 6 months to 1 year मैक्सिमम देते हैं फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बट दैट्स एक्चुअली फॉर द रिपेयर एंड नॉट फॉर द रिप्लेसमेंट. इन आर प्रैक्टिस अगर कोई ट्रीटमेंट फेल होती है 100%, अगर 6 महीने के अंदर कुछ ट्रीटमेंट फेल हुआ, डेफिनेटली इट इज़ आवर फॉल्ट. उसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा, मतलब हमारे जो प्रोसीजर या कुछ कंटामिनेट प्रोसीजर में कुछ कमी हुआ रहेगा, या फिर उसकी जो कुछ कंटामिनेशन हुआ रहेगा जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट फेल हुआ. तो ऐसे कुछ हुआ तो डेफिनेटली 100% वी रिपीट इट फॉर फ्री. And our mouth is, it's like an engine that never rests with many God-gifted workers, which is nothing but our teeth. So guys, you need to actually respect it and get it serviced every 6 months, just like how you service your 4-wheelers or 2-wheelers. Come on guys, our mouth is like a 32-wheeler teeth. जैसा गाड़ी को 4 व्हील है, हमारे माउथ जो है पूरे 32 दांत की एक मशीन है. So please to visit your dentist and get them serviced, and always brush your teeth, floss your teeth, maintain it, and at least 6 months में एक बार dentist के पास जाके उनको एक service दे दीजिए please. It's a must, it's a request to all our viewers and our patients, which I keep emphasizing on to. हर एक patient को मैं बार बार ये कहते रहता हूँ. So yeah, so guys, that's the end of today's episode of what if you don't do regular dental checkups. I hope you understood the importance, and yeah, if you like the content of the video, please to like the video, subscribe to our channel and support us, and stay tuned for more updates on to any further interesting videos. I'm Dr. Nevin Abraham signing off. Cheers.